اسلامیہ لائبریری صاحب بھون میں جناب عبدالرشید صاحب کے لیے ایک تعزیتی جلسہ کا انعقاد آج شام 6 بجے اسلامیہ لائبریری صاحب بھون میں ایک تعزیتی جلسہ بنام حاجی الحاج عبدالرشید صاحب کے نام ہونے جا رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ جو کر دو شریف فرما کر شکریہ کا موقع حضرات آج شام 6 بجے اسلامیہ لائبریری صاحب بھون میں حاجی الحاج عبدالرشید صاحب کے لیے تعزیتی جلسہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جو کر دو شریف ہو کر شکریہ کا موقع کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اسلامیہ لائبریری صاحب بھون میں آج ایک تعزیتی جلسہ برائے عبدالرشید مرحوم سابق آفیسر انچارج پولیس کے لیے ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہوگا۔ جب میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب رفیق صاحب کو دکھا دیتا ہوں اور معاف کیجیے گا امین الاسلام کا ہے دعوت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ تشریف لائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة بسم الله الرحمن الرحيم تبت
حول من مسد صدق الله العظيم. अब प्रोग्राम का बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू होगी। मैं इससे पहले ये प्रोग्राम शुरू किया जाए, मैं जनाब प्रोफेसर गुलाम अकबर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो सदारत करने के लिए इस मंच पर तशरीफ लाएँ। आज इस प्रोग्राम की सदारत की जलसा है सादिया जो है, इसकी सलाह जो है वो प्रोफेसर गुलाम अकबर साहब फरमाएंगे। क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो रहा है और आप हज़रात को मालूम है कि कलसा पुलिस के साहिब कोसी जनाब अब्दुल रशीद साहब का इंतकाल बांग्लादेश में हुआ। अल्लाह का जो हम लोग जानते हैं कि मौत का वक्त और जगह तो नहीं मुकर्रर है, ये बिल्कुल साबित हो गया कि जिनकी पूरी जिंदगी कस्म गुजरी, यहाँ आपने बचपने से लेकर बुढ़ापे तक यहाँ की कोई नौकरी यहाँ की मुलाजमत हुई, यहाँ रहे, लोगों के साथ रहे, हम लोगों के साथ रहे, लेकिन मौत ने उनको बांग्लादेश और बांग्लादेश में नरूकल हो। लेकिन क्योंकि ये हवाई जगह थी, उनको वहाँ से लाया गया और उनकी तस्वीर जो है यहीं भगवानी का स्थान में किया गया। उनसे मुताल्लिक़ हमारे साथ मोहतरम प्रोफेसर गुलाम अकबर साहब बहुत कुछ जानते हैं, बहुत जानते हैं, क्योंकि इनके साथ गुलाम अकबर के साथ गुलाम अकबर साहब के, तो मैं जनाब गुलाम अकबर साहब से कहूँगा कि आप प्रोग्राम को अपने तरीके से चलाएँ और उनसे मुताबिक जो मामला हैं, जिन लोगों को जो उनके सिलसिले में जानकारी है वो अपने अपने ज्ञान से उम्मीद के लिए जो है साझानामा पेश करेंगे। जनाब गुलाम अकबर साहब। अभी प्रोग्राम के लिए मैं अभी शायद इस तरह करूँगा कि कमेटी करना सामने के सामने अस्सलाम वालेकुम। आज का ये ताजबेटी जलसा बेटा फैजान रशीद और इस्लामिया लाइब्रेरी के शराब से हो रहा है। ये जलसे का ताल्लुक मरहूम अलहाज अब्दुल रशीद जनरल पुलिस हाउस से है। अब जलसे का आगाज चूँकि खिलाफत कलाम पाक से हो चुका है। आज हमें एक बात का अफसोस है कि अब्दुल रशीद साहब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। उनको और उनके कारनामे को याद करने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। मालूम हुआ कि अब्दुल रशीद साहब अपने अजीज रिश्तेदारों से मुलाकात की गरज से बांग्लादेश गए हुए थे। 21 नवंबर 24 को अचानक उनका दिल का दौरा पड़ा
اور وہ جا پہنچ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ افسوسناک خبر ہم لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ یہاں سے وہ بالکل ٹھیک اور فٹ گئے، لیکن مرضی مولا جو ہونا تھا وہ ہوا۔ یقیناً مسیحت نزدیک کے آگے کسی کو کوئی اختیار نہیں، موت کا وقت معین ہے، کس کا موت کب اور کہاں ہو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرکیف اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سلطن رفیع صاحب شریف النفس، با اخلاق، ملنسار، نرم لوگ، ان سے میری ملاقات جب بھی ہوتی تھی تو خندہ پیشانی سے ملتے، خیریت دریافت کرتے، نصیحت آمیز گفتگو کرتے۔ ان کی باتوں کا مجھ پر بہت اثر ہوتا۔ وہ ہمارے سوسائٹی سیٹ کے نائب صدر بھی تھے، وہ اپنے تجربات سے ہماری رہنمائی کرتے۔ وہ ایک سچے سماجی کارکن تھے، بڑے صاف گو تھے اور جھوٹ سے بڑی نفرت تھی۔ ان کا انتقال ہمارے اور سوسائٹی کے لیے بہت بڑی نقصان ہے۔ خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ اب چونکہ میں ان کو برسوں سے قریب کچھ نہیں تو 20 برس سے ان کا میرا تعلقات رہا ہے۔ وہ جب بھی ملتے بڑے خلوص سے ملتے، بڑے ہمدردی اور محبت سے ملتے، اور ہمیں بہت سارے کاموں کے لیے دعوت بھی دیتے، کہتے رفیق یہ کرو، تم تو یہاں کرتے ہو یہ بھی کر لو، یہ بھی کرو۔ یعنی ان کے ساتھ رہ کے بہت ساری چیز معلومات میں ہم کو اضافہ ہوتا تھا، اور اپنے تجربات زندگی کا بھی ہم کو بتاتے رہتے تھے، اور یہ بھی کہتے کہ رفیق دیکھو دنیا بہت عجیب قسم کا ہے، اپنے بھی نہیں ہوتے ہیں، غیر تو دور کی بات ہے، لیکن اللہ کے پاس یہ کام کرتے جاتے۔ میں ان کی باتوں پر عمل کرتا، اور آخری وقت میں تو بیچارے بہت ٹوٹے ہوئے تھے، ان کا دل بڑا ٹوٹا رہتا تھا، بہت افسردہ رہتے تھے۔ بھیا بولیے، ہم تو ان سے بھیا ہی سے بات کرتے تھے، وہ ہم سے تکلفانہ رفیق کر کے بلاتے تھے، مجھے بڑا اچھا لگتا، کیونکہ مجھے تو رفیق بولنے والے بہت کم لوگ ہیں، یہ 2-4 بھائی لوگ ہیں جو مجھے رفیق کہتے ہیں، ورنہ کوئی رفیق صاحب، کوئی رفیق بھائی، کوئی کچھ اس سے بڑا عزیز لگتا تھا، بڑا پیار لگتا تھا ان سے بات کرنے سے۔ اور مجھے تو بہت ہی افسوس ہے، جب بھی ملتے بہت دکھ بھری کہانی کو سناتے، بڑا دکھ بھی ہوتا، برائی بھی آتی کہ کیا زندگی بیچارے کا آخری وقت ہو رہا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، اللہ ایسا کبھی کسی کو دل نہیں دکھائے۔ مجھے سن کے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان کے دل پر کیا گزرا تھا۔ اب یہ بات میں آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس تو ضرور ہے کہ بیچارہ بہت قبل از وقت ہم لوگوں سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ چلا بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ القرآن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة، صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ الحدیث رواه البخاری۔ সম্মানিত মেহমান, আমি বাংলায় থেকে বলছি, অসুবিধা নেই তো? সম্মানিত মেহমান, আপনারা যারা এসেছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন, আমার অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের প্রতি ভালোবাসার সালাম রইল। হাজি আব্দুল রশিদ সাহেব, তিনি আমার সন্তানের মতন করে আমাকে দেখতেন। আমি খুব ছোটবেলায় প্রতিষ্ঠান একটা গড়েছিলাম, তো তখন এমন একটা পরিস্থিতি ছিল, সেই প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে পানি পড়লে নিচে কাদা হয়ে যেত। ওনার চোখের সামনে, আর উনি কিছু কাজ করেছে, প্রায় 50 লক্ষ টাকার উপরে আমার প্রতিষ্ঠানে কাজ হয়েছে ওনার চোখের সামনে। উনি আমাকে বিভিন্ন দিক থেকে হেল্প করেছে। এখানে আমাদের হাজি গোলামাক্কা সাহেব আছেন, নাইম ভাই আছেন, বিভিন্ন লোক আমার সাথে জড়িত রয়েছেন। তারা ইনি ছিলেন
এনাদের মাথার উপরে সমস্ত তাজ হিসাবে ছিলেন, যা কাজ করতেন আমি ওনার পরামর্শ নিয়ে করতাম। তো আলহামদুলিল্লাহ ওনার পরামর্শ দিয়ে আমার এই প্রতিষ্ঠান আজ 12 বছর চলছে। তা 12 বছরে প্রায় আপনার 22টা ছেলে হাফেজে কোরআন হয়েছে, আমার প্রতিষ্ঠান থেকে হাফেজে কোরআন হয়েছে। তো যখন যা অসুবিধা পড়তো, কখনো চাল থাকতো না, কখনো ডাল থাকতো না, তো হাজী গোলাম আকবর সাহেব আছেন জানেন বিষয়টা, আমি এনাকে শেয়ার করতাম যে হাই সাহেব এই পরিস্থিতির উপরে আছি, আপনি একটু এলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে যেতেন। আমার ডাক্তার মাহফুজ সাহেব ইনিও অনেকবার গিয়েছে, কিছুদিন আগে মনে হচ্ছে মাসেই আগে গিয়েছিলেন। জি 2 অক্টোবরে গিয়েছিলেন এনারা, তাতে হাজী রশিদ সাহেবও ছিলেন। আমার কিছু কাজের জন্য উনি ওয়াদা করেছিল যে আমি কাজগুলো করবো। আমাকে খুব ভালোবাসতো, খুব ভালোবাসতো, আর ছোট ভাইকেও শেয়ার করতো, ফ্যামিলি যা কিছু হচ্ছে আমার সাথে শেয়ার করে ফেলতাম যে এই পরিস্থিতি আমি আছি। তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত তাকে ডেকেছেন, ইদা মাতাল ইনসান ইনকাতা আমালুহু ইল্লা মিন সালাসাতিন সাদাকাতিন জারিয়াতিন আও ইলমিন ইয়ানতাফাউ বিহি আও ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু। পৃথিবীর মধ্যে মানুষ যখন চলে যায় তার 3টে আমল সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে থাকে। কি 3টে আমল? 1 নম্বর হচ্ছে ইদা মাতাল ইনসান ইনকাতা আমালুহু ইল্লা মিন সালাসাতিন সাদাকাতিন, আল্লাহর রাস্তায় দান সাদকা করেছো সেগুলো সেখানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেগুলো পাবে, আরাম পাবে সেখানে। ইল্লা মিন সালাসাতিন সাদাকাতিন জারিয়াতিন আও ইলমিন ইয়ানতাফাউ বিহি, এবং ইলমের জন্য কিছু সহযোগিতা করছে তার জন্যও তিনি সেখানে সওয়াব পাবেন। আও ওয়ালাদিন সালিহিন, এবং নেক সন্তান রেখে গেছে। উনি চেষ্টা করেছিল যে আমার দ্বারা আমার পয়সায় মোকাম্মাল একজন হাফেজে কোরআন বেড়ে যান। ওনার চেষ্টা ছিল। উনি 2 বছর পর 2টো ছেলে প্রত্যেক মাসে মাসে পয়সা দিলেন। এটা ছোট ভাই মনে হচ্ছে জানেন, ফাইজাল ভাই মনে হচ্ছে ব্যাপারটা জানেন। উনি ওখান থেকে পয়সাটা ট্রান্সফার করতো আমার মাদ্রাসার অ্যাকাউন্টে। তো আলহামদুলিল্লাহ এনার এই সহযোগিতা আমি অনেকটা এগিয়ে গেছি। এখন প্রায় 1 কোটি টাকা কাজ করেছি। টোটাল আমার 12টা কামরা হয়েছে, বাথরুম, গোসলখানা, টয়লেট রুম, এগুলো হয়েছে। একটা মসজিদ হয়েছে, প্রায় 17 লক্ষ টাকা খরচা করে মসজিদ হয়েছে। তো আলহামদুলিল্লাহ এনার যে অবদান, এনার যে মন মানসিকতা ছিল, আল্লাহর কাছে আমি দুহাত তুলে ফরিয়াদ করেছি বাচ্চাদের নিয়ে, আল্লাহ আপনি এনাকে জান্নাতুল আলা মাকাম দান করুন। সবাই বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে। আমি এই দোয়া বাচ্চাদের নিয়ে এশার পরে আর সূরা ইয়াসিন হয় ফজরের পরে আমি প্রত্যেক দিন প্রায় দোয়া করি। আমার 8টা ওস্তাদ আছে, টিচার আছে, তাদের আমি বলে রেখেছি যে আমার একজন খুব ঘনিষ্ঠ মাদ্রাসার সাথে জড়িত ছিলেন, তিনি চলে গেছেন। তার জন্য যতদিন আপনারা, আমি যখন না থাকবো, আপনারা যখন দোয়া করবেন, খাস করে ওনার দোয়ার মধ্যে ওনার নামটা নেবেন। এইভাবে আমি তালিকা লিস্ট করে রেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আমাদের বহু সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের কাছে করজোরে নিবেদন করব যে আপনারা একটু আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আপনারা জাকাত ফিতরার মাল তো বিভিন্ন জায়গায় যান, এখানে বহু মানুষ আমার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে, দেখে এসেছে কি গরিব হালাতে আছে। আমার মাদ্রাসা জীবনতলা থানা, প্রায় সুন্দরবন থেকে 40 কিলোমিটার দূরে। তো সেই জায়গায় আমি আছি, গরিব হালাতে আছি, খুব গরিব এলাকা। আপনাদের কাছে আমি আসি মাঝে মাঝে, আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত মানুষ চলে যাবে, কেউ থাকবে না। কার কখন মৃত্যু হবে কেউ আমরা বলতে পারবো না। আমাকে যেদিন এখান থেকে বাংলাদেশে যায়, হাজী সাহেব আমাকে ফোন করে বলছে, বেটা আমি একটু সফরে যাচ্ছি, 15 দিন পরে আমি ফিরবো, ফিরে তোমাকে আমি ডাকবো। আর আমাকে আর ডাকতে পারলো না, তার কষ্ট আমি আর কিভাবে সহ্য করবো, সেই সব কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমার ফ্যামিলি ওয়াইফ আমাকে বলে যে তোমার সাথে এত গুরু, এত ভাব ভালোবাসা ছিল, আপনি আমার কথা সব সময় মনে করো, গিয়ে করলে কি হবে? আমি দেখো আমার বাপের মতো আমাকে দেখেছে, আমি সন্তান, আমার বাপ যেভাবে আমাকে হেল্প করেছিল, আমার হাজী সাহেব সেইভাবে আমাকে হেল্প করেছে। আমি যখন প্রতিষ্ঠান করি, আমার আব্বা আমাকে 50,000 টাকা দিয়েছিল প্রথম জীবনে।
একদম প্রথম জীবনে একটা অ্যালবেস্টার লাগিয়ে দুটো কামরা করেছে। উপর থেকে পানি আসলে উপর থেকে বৃষ্টি ভিজে পড়ে জমিনে পড়তো, সেই জায়গা আমাদেরকে সেজদা দিত। আলহামদুলিল্লাহ সেই জায়গা এখন এমন একটা জায়গা হয়ে গেছে, পাথর দিয়ে সুন্দর করে সুন্দর মসজিদ হয়েছে, মাদ্রাসা হয়েছে, পড়াশোনাও ভালো হচ্ছে। এডুকেশনের বিষয়ে এনারা গিয়েছিলেন, বাংলা ইংরেজির দিক দিয়ে এনারা বলেছেন যে বাংলা ইংরেজি বাচ্চাদের ভালো করে তালিম তরবিয়া দিতে হবে। আমরা সেইভাবে একটা বাচ্চা হাফেজে কোরআন হচ্ছে, তার সাথে সাথে মাধ্যমিক দেওয়ার সেই সিস্টেম আমরা তৈরি করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের অবদান ছোট ছোট, আপনারা অল্প অল্প পয়সা দিয়েছেন, তার অবদান আজকে আমরা এই বড় জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি। এই পর্যন্ত আমি আমার কথা সংক্ষিপ্ত করলাম। ওয়াখিরি দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। डॉक्टर दोहा राय ये मॉल में रशीद भाई के साथ बहुत अरसा तक साथ में काम करते रहे, और वो कुछ चंद अल्फाज आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। आइए डॉक्टर। नमस्ते। आज আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন কিছু বলতে, কিন্তু আমার ঠিক গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। সার্জেন মুর্শিদের সাথে আমার পরিচয় 1987-এ আমি যখন এন্ট্রি করতে আসলাম। আমরা একদম এক বয়সী ছিলাম আর কি, এবং তারপরে ওনার সাথে কলিগ না, অফিসিয়াল রিলেশন না, ফ্রেন্ডশিপের মতো হয়ে যায়। ওনারও দুটো ছেলে, আমারও দুটো ছেলে, একদম ফ্যামিলিও খুব সিমিলার। হি ওয়াজ মাই বুজুম ফ্রেন্ড, জিগরি দোস্ত বলুন, আরও ভালো করে বললে আমি বলবো ফ্রেন্ড, ফিলোসফার, গাইড। আমি যখনই কোনো প্রবলেমে পড়তাম, একই কোয়ার্টারে থাকতাম, একতলা দোতলা, উনি কিন্তু সবসময় আমাকে একটা কভারেজ দিয়ে রাখতেন যে এই করবেন, এই করলে আপনার অসুবিধা হবে না। আর যেটা ওনার নিজের যেটা ফ্যামিলির থেকে ডিউটি, এরকম আমি খুব কম লোককেই দেখেছি। হি ওয়াজ রেসপন্সিবল ওনার পরিবারের প্রতি, ওনার ছেলেদের মানুষ করা, ওনার ভাইকে দাঁড় করানো, ওনার বাবা মার প্রতি ডিউটি। আমি দেখতাম, আমি অবাক হতাম যে একটা লোক পুরো স্ট্রাগল করে করে, একটা সময় তো পুরোপুরি ওনার ফ্যামিলিটা আমি জানি, অনলি হি ওয়াজ দ্য অনলি আর্নিং মেম্বার, একমাত্র যিনি রোজগার করতেন। ওনার থেকে দুই ছোট ভাই, দুই ছেলে, এভরিথিং। কেন কথাটা বলছি, পুলিশ সম্পর্কে আমাদের সবসময় ধারণা যে দে আর করাপ্টেড, দে আর বাট আই এম প্রাউড টু সে that the Roshi said never took a single pice as a bribe from the পাবলিক, যারা আর কি মর্গে আসতো বা অফিসিয়াল কাজ, এরকম লোক আমি জিন্দেগিতে আমি দেখিনি। এত অনেস্ট, এত সিনসিয়ার লোক। এবং যখন আমাকে ভাইজান ফোন করলো যে ওনার ইন্তেকাল হয়ে গেছে, আমার পক্ষে এটা ছিল মানে বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু, বিনা মেঘে বজ্রপাত। একদম আমার বয়স, সে কি করে চলে গেল। আর নিজেকেও ভাবলাম যে এত আফসোসের ব্যাপার হয় না। আমি আমার নিয়ম অনুযায়ী বলছি, ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি ওনার একদম স্বর্গে উনি শান্তি লাভ করুন, ওনার আত্মার চির শান্তি কামনা করি। আমি বলছি এরকম লোক আমি জীবনে দেখিনি, এত সিনসিয়ার, রেসপন্সিবল, কাজে কোনো ফাঁকি নেই, সবসময় 24 আওয়ার ডিউটি করে যাচ্ছেন, এবং কোনো রকম মানে অসাধুতা যাকে বলে আর কি, ড্রাইভারিতে কোনোদিন এক পয়সা উনি কাউকে সিনসিয়ার টু দি ফ্যামিলি, সিনসিয়ার টু দি গভর্নমেন্ট, সিনসিয়ার টু countrymen, everybody. I pray to God that he should get in the heaven and he should be saved. Many thanks, Dr. Saab. Very good expression regarding Rashid Bhai you have given and placed before the audience. Thank you very much. अब मैं हाफिज जी, राजा हाफिज को जिनका नाम तरीज अहमद रशीद है, उनसे दरखास्त करेंगे कि वो अपने चंद अल्फाज रशीद भाई के सिलसिले में रखें। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد معزز سامعین اور ہمارے مہمانان جو آج یہاں پر تشریف فرما ہے، قرآن میں ایک جگہ تین جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر جاندار میں چکھنا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، یعنی اس دنیا سے ہمیں رخصت ہو رہا ہے، کوئی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہاں پر جب آئے ہیں تو یہاں سے ہمیں کل جانا ہی پڑے گا۔ تو میں ان کے الفاظ میں کیا کہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے۔ بہت ہی مخلص اور بہت ہی کیا بتائیں ان کے بارے میں، انتقال سے قبل جس وقت ہم میڈیم لانڈری کی طرف سے ہم جا رہے تھے تو ہم سے کہیں کہ راجا سنو بیٹا ایک بات تم سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم بولا بولیے۔ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھو ہم ایک چیز ہم بھول رہے ہیں، ہمیں آپ بتا دیں۔ تو ہم نے کہا کیا وہ بتائیے۔ بولے ہمیں دعوت میں جانا ہے اور ہم دعوت میں جانے کی دعا ہم بھول گئے، تو ذرا ہمیں بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی۔ تو ہم نے کہا کیوں نہیں بتا دیں، تم ایک کام کرو، تم ہم کو واٹس ایپ پہ ہم کو کر دو، آج بھی میرے پاس موبائل میں موجود ہے، ان کی یہ الفاظ جو ہیں ہم کو چھوتا ہے، یہ جب الفاظ کہیں کہ ہم کو دے دینا میں لے کر جاؤں گا، تو بس وہی آخری ملاقات ہم سے ہوئی اور ان کو ہم نے واٹس ایپ کیا، اور جب وہاں سے تشریف لائے بنگلہ دیشی کو چلے گئے، اس کے بعد پھر معلوم ہوا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ آئے، معلوم ایسا ہوا کہ لگ رہا کہ ہم سے آخری ملاقات ان سے وہیں پر ہوئی ہے۔ یہ زندہ مثال ہے جو ہمارے ساتھ یہ پیش آیا ہے۔ بہرحال موت کا مزہ تو ہر کو چکھنا ہے، اسی سلسلے میں میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں اور اس کا نام ہے احساس موت، اور اسی کے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ عبرت ہے کہ آج وہ چلے گئے تو کل ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ اس کے چند اشعار آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بلبلو یاد رکھ لو چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، بلبلو یاد رکھ لو چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، جس گھڑی اٹھ گیا آبودانہ، جس گھڑی اٹھ گیا آبودانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، بلبلو یاد رکھ لو چمن سے، کوئی ساتھی نہ ہوگا ہمدم، کون رکھے گا زخموں پہ مرہم، کوئی ساتھی نہ
अपनी अपनी लहद में हश्र तक अपनी अपनी लहद में तुमको आंसू बहाना पड़ेगा। बुलबुलो याद रख लो चमन से मलके का फूल सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में। मलके का फूल सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सुए शहरे खामोशा दोस्तों सुए शहरे खामोशा चार कांधों पे जाना पड़ेगा। बुलबुलो याद रख लो चमन से डूब जाएगा हर एक सवेरा सामने होगा सू अंधेरा। डूब जाएगा हर एक सवेरा सामने होगा सू अंधेरा। मिट्टी डालेंगे सब मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी डालेंगे सब मुट्ठी मुट्ठी। ये भी ऐसा उठाना पड़ेगा। चार दिन की है ये जिंदगानी रीत है ये यहाँ की पुरानी। चार दिन की है ये जिंदगानी रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ जहाँ से आज मैं जा रहा हूँ जहाँ से कल तो तुमको भी जाना पड़ेगा। बुलबुलो याद रख लो चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। बुलबुलो याद रख लो चमन से। बस इसी के साथ अपनी बात ये रकम को कहता हूँ और उनकी ये मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको खुल्द बरी में आला से आला मुकाम हासिल करता। इनको जो है मौत का मंजर सबों के सामने रखेंगे और इसको याद करने की ज़रूरत है ही है। बहुत उम्दा नज़म था, इसके लिए बहुत मेरा शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। ये मौका बहुत ज़्यादा तकलीफ करने की नहीं है, इसलिए कि बोलने वाले को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस मौके पर कुछ कहना। दिल इसकी इजाज़त नहीं देता है
लेकिन जाहिर है मुझे बुलाया गया है तो मैं अपने डेड हाउस के इंचार्ज रहे जलुआ टोली में, और इत्तफाकन मेरी पुरानी ज़िंदगी वहीं गुजरी। हम दोनों में काफ़ी ताल्लुकात हो गए इस बुनियाद पर कि वो एक अच्छे इंसान की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और मैं तालीम इल्मी के स्टेज के ऊपर चला गया था। मतलब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, काफ़ी ताल्लुकात हो गए, आना जाना भी घरों में होता था। मैं मस्जिद ठीक डेड हाउस के सामने वाली मस्जिद जिसमें टिप्पू सुल्तान के इमाम साहब सैयद नूरुर रहमान बरकती साहब रहते हैं, मैं उसी के अंदर रहा करता था। और हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी मौजू पर गुफ्तगू किया करते थे। उस महल्ले में रशीद साहब बहुत रिजर्व थे, लेकिन अखलाकी तौर पर वो हद से मिलना चाहते थे। जो भी उनके यहाँ किसी मदद के लिए आते थे वो फौरन आ जाते थे और उनकी कोशिश रहती थी कि हमारे ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचता, तो ये मेरे लिए बड़ी कदर मंजिलत की बात। एक बार ऐसा इत्तफाक हुआ कि मैं गवर्नमेंट क्वार्टर बंगाल पोटरी में रह रहा था। मेरे गांव के किसी शख्स की औरत ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। उसका डेड बॉडी मेडिकल में आया, मुझे इसकी इत्तला नहीं थी। एक जो रिश्तेदार थे दूर के, वो हमारे यहाँ 12 बजे रात को आ गए बाइक से और कहा कि मास्टर साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमें पता चला कि आपका रशीद साहब से अच्छा ताल्लुकात है, तो इसमें थोड़ा सा ताउन की ज़रूरत है, आप चलिए जाए। हमने कहा देखो भाई 12 बज रहा है, हम अभी नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, सुबह बॉडी का मसला आ जाता है, चीर-फाड़ ज़्यादा होता है, फिर केसेस बन जाएंगे। तो हमने कहा मैं एक लेटर दे रहा हूँ। तो बोले लेटर से क्या हो जाएगा? बोले मैं लेटर दे रहा हूँ, आप रशीद साहब को नोट करके जाएंगे, दे दीजिएगा और वो लेटर पढ़ेंगे और आपका काम करेंगे। बहरहाल मैंने उनको लेटर दे दिया और रशीद साहब ने दरवाज़ा जब खोला तो बोले क्या बात है? बोले मास्टर इजहार ने आपको आज्ञा नाम। बहरहाल जो कर सकते थे उसी वक्त एक्शन में आ गए और कहा कि आपको घबराने की बात नहीं है, सुबह में हम जितनी भी सहूलियत मुहैया हो सकती है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन कनेक्शन विद दिस मैटर। उन्होंने ये वादा किया, बहरहाल कर भी दिया। मैं जब दूसरे दिन शाम को जब मैं गया तो उन्होंने कहा भाई आपका लेटर आया था इसलिए मैंने कर दिया, और ऐसे भी मैं कर देता। बहरहाल रशीद साहब पुलिस डिपार्टमेंट में रखे। मैंने कई बार उनसे कहा कि रशीद भाई प्रमोशनेबल सर्विस है, यू शुड हैव ट्राई टू बेस्ट योर क्रिएट योर अपॉर्चुनिटी, है ना, आप अच्छे ओहदे पर आपको चांस मिल सकता है, ट्राई कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये सामने मस्जिद है, 5 वक्त की नमाज की सहूलत मुझे है, इतना बड़ा क्वार्टर मिला है जो मैं पूरी फैमिली के साथ दूसरे रिश्तेदारों को भी रख सकता हूँ। ये सहूलियत कलकत्ते में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। ये और बात है कि आपको भी क्वार्टर मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपका क्वार्टर तो 2 रूम से है, अब मेरा आप देख रहे हैं बहुत खराब है, तो मैं इसीलिए प्रमोशन लेना नहीं चाहता। मैं चाहूँ तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन कहाँ दे देगा? ये सामने मस्जिद है, 5 वक्त की नमाज, और जब 5 वक्त जब हम जाएंगे तो हमको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। अल्लाह के फजल से सब मेरे मसाइल। उसी ज़माने में उनका एक भाई मेडिकल की ट्राई कर रहा था, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई यहाँ तो कॉम्पिटिशन में हुआ नहीं, उसको हम यूक्रेन भेजना चाहते हैं। शायद मुझे अच्छी तरह याद नहीं है यूक्रेन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये काम कर लूँगा। शायद किसी तरह से 2 लोन लेकर के उन्होंने उनको यूक्रेन भेजा और वो MBBS की डिग्री भी लेके आया। उनके 2 बच्चे बहुत ही सलीके मत चाहते तो वो ऑफिस की गाड़ी से बच्चों को स्कूल भेज सकते थे और ऑफिस की गाड़ी से बच्चों को बुलवा, लेकिन कभी उनको हमने नहीं देखा। हाथ पकड़ के वो बच्चों को ले जाते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था बच्चा, और वो लेके आते थे। बड़ा अजीब सा हमको फील हो जाता कि एक पुलिस ऑफिसर, चूँकि 3P के बारे में ये मशहूर है कि जो आदमी
अपनी जिंदगी को अच्छी तरह गुजारना चाहता है, उसको एस्केप करना चाहिए P3 से। P फॉर प्रमोटर, P फॉर पुलिस और P फॉर पॉलिटिशियन। ये तीनों ऐसे खास होते हैं जिसकी लपेट में अगर आम आदमी आ गया तो उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो रशीद साहब P फॉर पुलिस में थे, लेकिन कभी भी कोई दरोगोई या किसी से गिव एंड टेक का मामला हमने नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हमारे डेथ उनसे कारोबार था, यहाँ तक के बीच में वो बहुत परेशान हो गए, उनके बहू ने केस कर दिया, छोड़े, इसकी वजह से बहुत परेशानी में थे। बहरहाल उन्होंने हमसे भी मदद चाहिए थी कि भाई आपका भी पुलिस महकमा में कुछ है जरिया, तो आप जरा से मेरे लिए कीजिएगा। तो बहरहाल हो नहीं सका। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ, बांग्लादेश से मैं वापस आऊँगा तो आपसे फिर बात करूँगा। मैं गांव में था, मुझे पता चला कि दुनिया से चले गए। हाँ है, अच्छे आदमी, मौत तो बरात है। अभी हाफिज साहब ने कहा, बड़ी खूबसूरत नज़्म सुनाई पूरी ज़िंदगी की, काफ़ी जिंदा लोगों के लिए ये इस्लाह है। तो रशीद साहब की खुसूसियत पुलिस की हैसियत से नहीं बल्कि इंसानियत की हैसियत से वो परफेक्ट इंसान है। अगर कहा जाए कि ही वाज कंप्लीटली परफेक्ट पर्सन इन ऑल हिज बिहेवियर एंड कैरेक्टर, तो हम तो कहेंगे भाई इससे अच्छा पुलिस ऑफिसर मिलना बड़ा मुश्किल है। मेरे बच्चे का जब अपॉइंटमेंट का मामला आया पुलिस में, DSP है, DSP इन भवानी भवन, तो उस वक्त वो SI था। तो हमने रशीद साहब से कहा कि भाई बच्चे का तो SI में सिलेक्शन हो गया, तो इसकी ट्रेनिंग वहाँ होगी बैरिकपुर में, ज़रा सा आप कोशिश कर देंगे। तो आपके ताल्लुकात बोले ठीक है, आप बच्चे को भेज दीजिए ना, हम देखेंगे। बहरहाल फिर उसने कोशिश की और वो DSP हो गया। बहुत खुश हुए, हमको मुबारक पानी देने के लिए घर भी आए। हज के दरमियान में भी वो हमसे मिलने आए कि आप हज पे जा रहे हैं, वो भी हज पे गए। तो ये ज़िंदगी का है। बहरहाल और क्या कहा जाए, ज़्यादा बोलने से तो बात, वो एक ही आदमी है घूम फिर के, बस एक शेर है गौसी मानस का कि इंसान की ज़िंदगी का बस इतना ही फसाना है, वक्त आमद रोना है, वक्त रुखसत रोना है। आज हम लोग रो रहे हैं, पैदाइश के वक्त आदमी हंसाता है, रोता है, लेकिन जाते वक्त पूरे इंसानियत को रुला के जाता है। ऐसे लोगों पर जितनी भी आंसू बहाए जाए कम है। बस एक ही है कि हम लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए खुदावंद करीम से दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उनके बच्चे को कम से कम ये सलीका दे कि बाप के नक्श कदम पर चले, और बाप ने जो अपना निशान छोड़ रखा है उसको वो फॉलो करें, ताकि उनका भी नाम हो और लोग कहें कि ये रशीद साहब की औलाद है। यही हमारा उन बच्चों से भी दरखास्तें हैं, और हम समझते हैं कि अब बच्चे को ज़रूर एहसास होगा। बीच में बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं स्केप कर रहा हूँ, मगर अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और हम तमाम लोगों उनके लिए मग़फ़िरत के दुआ की दरखास्त होगा कि वो रशीद भाई की आज बहुत अफसोस के साथ कुछ बातें कहने का मौका मिला है। अब्दुल रशीद मरहूम जो पुलिस डिपार्टमेंट में कक्षा पुलिस डिपार्टमेंट के उसी के ओहदे पर जाकर रिटायर किए। रिटायरमेंट के बाद भी गर्जे पुलिस वाली ज़िंदगी उनको तो नहीं गुजरी, लेकिन एक खादी खिदमतगार सोशल समाजी वर्कर के हिसाब से, कौमी खिदमतगार के हिसाब से उन्होंने मुख्तलिफ मदारिस और दीनी मदारिस और जितने भी दीन से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे थे, उन इदारों से बस ताल्लुक़ पहुँचाता था। मैं चंद बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों के बैठक होती थी हमेशा, वो चीज़ समझ लीजिए। हमारे फ़ख्र आलम साहब मौजूद हैं यहाँ पर, उनके दौलत खाने पर उनके ऑफिस में हम सबों को बैठक होता था, और वहाँ वो भी आते थे। तो वहाँ बैठकर भी
दीनी के सिलसिले में गुफ्तगू होती थी और कुछ मदारिस जो थे जयनगर के और दरबन से हमारे सदस्य से भाग हुए हैं, तो उन तमाम मदारिस के जो जिम्मेदार हजरात थे, मौलाना उनका नाम था मौलाना हारून रशीद साहब और तमाम हमारे जो मौजूद रहते थे, सबों ने अपने अपने हिसाब से उनका ताउन करके बिल कटा के उनको दिया। उन्होंने सर्दी के ज़माने में उन तमाम मदारिस में जो करते से बाहर हैं उन्हें कंबल का इंतजाम करना, लोगों के लिए कपड़े का इंतजाम करना, ये बहुत ही ठीक से बात करते थे और करते थे। तजीम खाना इस्लामिया आपके बैतुल-उलूम मदरसा बैतुल-उलूम राजा वाला और इसी तरीके से दूसरे मदारिस जो है उन तमाम तकरीर वो कटाते थे, करते से कहते थे कि मिलना चाहिए। तो आमीन। खुदा हाफिज़। नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं खलील साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो चंद अल्फाज रशीदा के सिलसिले में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई। हमारे दरमियान जनाब फयाज अहमद भाई साहब मौजूद हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे। पूरे डिपार्टमेंट में सब पुरानी ताल्लुकात है, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फयाज अहमद हूँ। मैं कलकत्ता पुलिस में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ओहदा पर फायज था। मैं गुज़श्ता साल रिटायर्ड हूँ। आपके इस इलाका में मैं काम करके गया हूँ। 2006-7 में मैं नाटोडंगा का डिस्ट्रिक्ट OCP था। आज हम सब लोग ये ताज़ियती जलसा में मौजूद हैं। जनाब अब्दुल रशीद साहब मरहूम के इस ताज़ियती जलसा में हम लोग मौजूद हैं। मैं जब कलकत्ता पुलिस में ज्वाइन किया था, इसमें लीजिए 86 में मैं ज्वाइन किया, उसके बाद उनसे मेरा ताल्लुक़ हुआ। ज़्यादातर वो अपनी लाइफ कलकत्ता पुलिस मॉल जो नील माधव सिंह लाइन में है वहाँ उनका पोस्टिंग रहा। उसके पीछे क्वार्टर होता था, पुलिस क्वार्टर, उसमें वो रहाइश उनकी रहा। रशीद साहब का क्या कहना, बहुत मुखलिस थे, बहुत प्यारे थे और हमें प्रोफेशनल जो भी हमें ज़रूरत है, चूँकि मैं जब सब इंस्पेक्टर रहा, उसके बाद इंस्पेक्टर हुआ, तो मॉर्ग से कुछ ना कुछ मैटर में ज़रूरत पड़ता ही रहता था। तो उनसे रजू जब भी किया, उनसे जो भी हुआ बढ़ चढ़ कर उन्होंने हमें हेल्प किया। इसके साथ साथ मैं जब बैरकपुर ट्रेनिंग कॉलेज में भी था 86-87 में, तो ट्रेनिंग के दौरान भी हम लोगों को यहाँ मॉल में आना पड़ता था। कुछ डॉक्टरों के साथ डिसेक्शन का मामला है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, सब्जेक्ट होता है। उस सिलसिले में भी उन्होंने जब भी मैं क्या मेरे साथी जितने भी थे पुलिस के दूसरे अफसरान से भी वो उनका हमेशा ही बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही उन्होंने कोऑपरेशन हम लोग को मिला। प्यारे थे, बहुत मुखलिस थे, हेल्पफुल थे। और आप चूँकि इस इलाका में वो थे, उनका रहाइश मुकीम आप सब लोग ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन उनसे भी मेरा ताल्लुका बातचीत होता ही रहता था। फिजिकली मुलाकात हो सकता 2 महीने 4 महीने में किसी प्रोग्राम में कहीं हो, लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मेरे से होता रहता था। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, ये दुनिया है, जाना है आना है। हम सब लोग यहाँ जो भी मौजूद हैं, ये अल्लाह पाक ने हम सब लोग यहाँ भेजा है। ये हकीकत है कि हम लोग को इस दुनिया छोड़ के जाना है। आज हो, कल हो, परसों हो,
सब यहाँ पर दानिश्वर दीनी तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, इससे तो हकीकत से कोई इनकार नहीं है। लेकिन चले जाने के बाद जो रिश्ता होता है याद आता रहता है। जो लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सामाजिक काम हो, इंसानी काम हो, तो लोग उसको याद करते हैं। अल्लाह ताला से हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके गुनाहों की बख्शिश करे, मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। एक बहुत अच्छे साथी को, एक अच्छे बहुत ही अच्छे इंसान को हम लोगों ने खोया है। हम सब मिलकर उनके लिए बस ये दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये चंद बातों के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज भाई। और मैं अपने दोस्त नईमुद्दीन भाई को दरख्वास्त करेंगे कि रशीद भाई के सिलसिले में अपने तासुरात को सामने के सामने रखें। उनकी ज़िंदगी शुरू से आप बचपन से साथ कर रहे हैं, तो पुरानी बात को याद कराइएगा। इससे आप कुछ बात रहे स्कूल का ज़माना, जब क्लास 5 में हम लोग साथ पढ़े, उस वक्त से जान पहचान में दोस्ती भी हो गई। तो सब परिवार बन रहते थे, वो साथ बन रहता था, फिर भी आना जाना होता था। पता नहीं खास खुशियत हो गई थी। वो भी यहाँ पे मतलब चप्पल का खाना था पहले, चप्पल ला के दिया करते पहले। मेरा हम लोग बना हुआ चप्पल पेन हो गई। क्लास उर्बन स्कूल में हम लोग क्लास 7 पढ़े, क्लास 6 तक। उसके बाद हमने हाई स्कूल में एक साथ पढ़े। कॉलेज में फिर यूनिवर्सिटी का ज़माना हुआ। ये बहुत कम लोग जानते कि वो पाकिस्तान में 3-4 महीना जाके कॉलेज में दाखिला लिए। हम लोग यहाँ कलकत्ता में प्री यूनिवर्सिटी था, हम लोग यहाँ दाखिला ले लिए। लेकिन उसको क्या हुआ, पाकिस्तान में जाना था, तो जहाँ इंतकाल हुआ जिसके यहाँ रिश्तेदार के यहाँ, मुझे घर में ठहरे थे, वो वहीं रहते भी थे। तो वो जाके प्री यूनिवर्सिटी कायद आलम कॉलेज में जाके दाखिला ले लिया। तो 3-4 महीने के बाद ही पता नहीं, समझ में नहीं आया, वो फिर वापस आ गए। आने के बाद फिर यहाँ कॉलेज में, आनंद मोहन कॉलेज में, ये हमारे दोस्त बैठे हुए गुप्ता साहब, तो इनके साथ पूरा कॉलेज लाइफ गुजारा। और हम प्रोफेसर अकबर साहब हम लोग कॉमर्स में चले गए, वो साइंस में थे, इनके साथ कॉलेज के इस्तेमाल हुआ। कहने का मतलब है कि वो शुरू से बहुत स्ट्रगलिंग है। उस ज़माने में भी हम लोग एग्ज़ाम, स्कूल के बाद भी हम लोग कई एग्ज़ाम दिए। चलो भाई नौकरी जगह देखा जाए, उस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठे, करना तो होगा। मेरी नौकरी लगी 1973 में फूड डिपार्टमेंट में। उस वक्त भी वो उनकी नौकरी नहीं लगी। वो कोशिश करते रहे, वो भी। फिर कुछ पुलिस वालों से दोस्ती हुई थी। उस ज़माने में बड़ा इंस्पायर किया कि भाई पुलिस में अप्लाई करो। ठीक है बेटा, तब यहाँ इसी बगल यहाँ एक्सरसाइज है, करने का क्लब है, जहाँ बॉडी बनाया हुआ है। चलो ठीक है। लेकिन उसमें भी स्ट्रगल हुआ उनको। फर्स्ट टाइम, 2 सेकंड, 3rd टाइम में जाकर वो सक्सेसफुल हुए, तब उनको सार्वजनिक की नौकरी मिली। बहुत स्ट्रगलिंग थे उस ज़माने भी। अब सवाल ये कि नौकरी लगने के बाद उनके पर था 2 छोटे भाई, तो उनको भी स्टैंड कराना था। वो इसी तरह से भी छोटे भाई खुर्शीद को रशिया भेजा, यूक्रेन में जो बताया वो, तो वहाँ जाके एक्सटर्नल अफेयर का जो होता था कल्चरल, यहाँ से कुछ स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते थे, वहाँ से कुछ स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे। इस हिसाब से उनको छोटे भाई को वहाँ से लेके, ताकि उसकी ज़िंदगी लाइफ बन जाए। छोटे भाई जमील भाई, उसके बाद वाला भाई, उसको भी किसी तरह से वहाँ जमील साहब में नौकरी वगैरह लगा के लिए। तो स्ट्रगलिंग लाइफ हमेशा रहा हो। फिर कुछ वो अपने घर वालों के लिए 3-4 टैक्सी भी खरीद ली ताकि घर में इनकम का जरिया रहे। लेकिन बैंक से लोन ले गए, फिर भी वो नुकसान हो गया। चलता रहा, इस तरह का होता रहता था। तो ताल्लुकात तो ये थी। लेकिन सवाल है कि अब पुलिस नौकरी में वहाँ 1984 से वो मॉड में पोस्टिंग हुआ। 1984 29 साल तक वहाँ रहे।
29 साल के बाद वहीं से रिटायरमेंट हुआ, फिर आके यहाँ आए। तो एक ये रहता है कि जो बताएगा वो बहुत कोऑपरेटिव थे। फैजाज साहब ने भी कहा ये शुरू से उसकी आदत थी हेल्प करने का। कोई भी मसला होता हमारे पास आया, हम उसको बोला, हमने कुछ कहा, तो जिसका भी मसला को ना नहीं करते, नहीं चलो भाई जितना हो सकता है हेल्प करेंगे। हेल्प करने का जो एक हेल्पफुल जो माइंड था, माइंड सेट था, उसका कोऑपरेटिव एटीट्यूड था, वो हमेशा से रहा, हमेशा से रहा। यही वजह थी, यही खासियत थी जो दूसरे को अपनी तरफ खींचता था और अपनी तरफ बढ़ता था। तो गुजर के रही हम वो हज में गए। हज करने के बाद से मेरे वो ड्रामेटिक चेंज आया उनके अंदर, एक और भी जज्बा पैदा हुआ उनके अंदर खिदमत करने का। मदरसा ये हम लोग तो मुसलिक हैं, बहुत एक रीसेंट हम लोग है, हम लोग मॉर्निंग मेम्बर है, हम लोग आज 20-22 साल हो गए, 25 साल के करीब हम लोग उसी अदारा को चला रहे हैं। रशीद भाई भी ये साथी हम लोग बहुत मानस है, तो ये चलता रहा। उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा इतना एटीट्यूड इतना बदल गया तो बस वो दीनदार रहा, दीनी काम में, दीनी मामला में मशगूल रहते थे। हेल्प तो है ही है, किसी न किसी तरह के जो भी मामला होता था भाई इनका ये काम है कर दो, करते रहते थे। अब कहा परेशानी आई है लास्ट में ज़िंदगी में आखिर में कुछ परेशानी, लेकिन यही है कि बेचारा कुछ ख्वाहिशात कुछ ख्वाहिश को लेकर अपने चल बसे। एक ज़माना था जब हम लोग 1971 में बांग्लादेश में पढ़ा था, एक साथ हम लोग बांग्लादेश पाकिस्तान गए, वही आखिरी जाना हुआ था साथ में मेरा ख्याल है। उसके बाद ये जाना हुआ बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश होने के बाद 1971 में हम लोग एक साथ बांग्लादेश गए। तो ईस्ट पाकिस्तान था, एक साथ गए थे जहाँ एक ठहरे हुए थे ढाका में, वहाँ भी गए मुलाकात, हमको मिला गए थे तो ढाका गए। फिर हम जाके ढाका में मुलाकात किए, वहाँ गए भी, वही घूमे फिरे भी हुए मेरे साथ। इतफाक़ के बाद एक दिन आना भी हुआ था एक ही साथ, लेकिन अलग अलग टाइमिंग अलग हो गया था, लेकिन एक ही साथ बॉर्डर पार गए थे उस तरह। तो है यही तरह होगा। अब कहने का मतलब है कि अब तो रहे नहीं, अब अल्लाह ताला उनका जो औलाद है उन सही तरीके से वक्त गुजारे, यही करें। दुख तो है ही है, एक 60 साल का रिलेशन इतनी जल्दी तो बढ़ाया नहीं सकता है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और उनके बच्चों को हिम्मत दे ताकि आगे साथ मिल के रहें, ताकि अपनी ज़िंदगी कोई कुछ नहीं करता है, आपस का जो रिलेशन ही वही सही होता है। आपस में मिल के रहो बाबू, दोनों आगे बढ़ो और ताल्लुकात के सही करके जितना ज़िंदगी में अब्बा के नक्श कदम पर चलो, वो जो छोड़ के गए हैं जो अखलाक बात उसको लेके चलो, तो प्याज बात में बढ़िया डिज़ाइन बात होता है। ये सब आगे की ज़िंदगी में ये आना ज़रूरी है। यदि पहचान कि रशीद साहब की पहचान नहीं रहेगी, वो खासियत अगर अपने अंदर नहीं पैदा करोगे तो रशीद भाई की पहचान खत्म हो जाएगी। भाई तुम लोग पहचान लो, बस यही बात ख़त्म करके अपनी बात ख़त्म कर दो। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अपने जवाब रहमत में जगह अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं भाई। अब मैं दरख्वास्त करूँगा ब्रदर वसीम हाजा से कि वो चार अल्फाज रशीद भाई के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग बहुत अफसोस से आपके में मौजूद हैं कि हमारे बीच जनाब रशीद साहब नहीं रहे हैं, तो उनसे हम लोग का बहुत अच्छा बहुत क्लोज ताल्लुकात था और अक्सर बैठना होता था अफगानी साहब के यहाँ, हमारे राहुल से मुलाकात होती थी, रास्ते में मुलाकात होती थी, बहुत तो मेरा कहने का ये था कि रशीद साहब के बारे में जो है मैंने बहुत ही नेक और मुखलिस इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत हमदर्द भी थे, लोगों के हमदर्द थे। किसी का कोई भी काम होता था तो उनको बोलने से जो है वो ज़रूर उसमें कोई ना कोई बताते थे रास्ता, कैसे करना है वैसे करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर हमसे मुलाकात होती थी तो देखते थे वो सुखिया स्ट्रीट की तरफ से मानी ताला की तरफ से चले आ रहे हैं, तो हम सलाम कहाँ से आ रहे हैं, तो एक नमाज़ पढ़ने गए थे। तो कहाँ वो मानी ताला में जो मस्जिद है, हाँ वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, और सुखिया स्ट्रीट में जो मस्जिद है वहाँ भी कभी जाते थे। तो वो जो है जामा मस्जिद
छोड़ करके वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। क्यों? ताकि मस्जिद आबाद हो, वहाँ भी कुछ लोग जाएँ, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ें। तो ये उनके अंदर जज्बा था, ये उनके लिए मज़हब का मजहबी जज्बा और इस्लाम का जज्बा ये उनके अंदर बिल्कुल भरा हुआ था। तो हम लोग को बहुत अफसोस होता है, हम लोग बीच नहीं है, बहुत अफसोस लगता है, लेकिन कुछ करना भी नहीं है। ये तो माने हकीकी है, इसको तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। हम लोग सिर्फ सब्र कर सकते हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं और उनके तमाम गुनाहों को जो भी अनजाने में या जाने में हुई उनको माफ़ कर दे और उनको कब्र को नूर से पूर कर दें। यही हम लोगों की दुआ है और उनके बच्चों को सब्र तहम्मुल का मामला अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया योसमादर भाई। अब आपके सामने हमारे रशीद भाई, ये भी वो मुझे बचपन के दोस्त और दोस्त थे, प्रोफेसर अकबर को हम दावत दे दें, रशीद साहब के बारे में अपने ख्याल से जाना। इस चर्चा का मकसद ये है कि गुजरने वाले रशीद भाई के सिलसिले में उनके औसाफ को उजागर किया जाए, बन सके दूसरों के लिए। जो गुजर जाते हैं उनके जो सफ़ात होते हैं, अगर उनको उजागर किया जाए लोगों के सामने, उनके बच्चों के सामने, तो बहुत सी बातें पोशीदा रहती है। तो वो बातें जब सामने आती हैं तो लोगों को एक जज्बा होता है, एक उनसे पैदा होता है कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, हम सही काम नहीं कर रहे हैं। जब हमारे बुजुर्ग हैं जो गुजर गए हैं, हमारे लिए जो अच्छा रास्ता दिया है, उनको भी ये काम करना चाहिए। आज का ये जो जलसा है और आप लोगों की जो तशरीफ आवरी है, इस बात की बदमाशी करती है कि उनसे आप लोगों उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहा है। यहाँ हमारे सामने डॉक्टर साहब भी आए हुए थे जो उनके साथ मोहर में काम करते रहे, गुप्ता साहब भी मौजूद हैं और उनसे तो बुनियाद पर ये यहाँ पर मौजूद है। रशीद भाई के सिलसिले में एक बहुत लंबी कहानी है मेरे साथ और नईम भाई के साथ, और हमारे एक और साथी बैठे हुए पीछे में, उनका नाम है आबिद हुसैन। एक ऐसा जिंदगी का वाक़या गुजरा हम लोगों के साथ, एक फैमिली के अंदर भी जब भी नाम आता रशीद भाई का तो सब पूछता कि नईम भाई कहाँ, आबिद भाई कहाँ। तो बड़ा सिलसिला रहा, कहीं जाने का कहीं आने का सब। और छोटे से क्लास 2 से हम लोगों का सिलसिला रहा और वो BSc किए, हम लोग BCom किए, लेकिन दोस्ती अपने जगह बरकरार रहा। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो बात बहुत मैंने इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग 4 दोस्तों में कभी ना इत्तेफाकी नहीं हुआ, कभी ना इत्तेफाकी नहीं हुआ। हमने नईम भाई को अगर बोल दिया कि रशीद भाई को ये करना है, अभी को खबर देना, वो काम रहेगा। अभी को मैंने खबर दिया कि रशीद भाई को जाकर बोल दो, नईम भाई को जाकर बोल दो, ऐसी बात है, वो काम किया है। तो हमें एक अनहोनी हम लोग का ताल्लुक रहा और आज तक है। सुबह 8 बजे का टाइम में या 8 से पहले हमारे पास फ़ोन पहुंचा नईम भाई का। नईम भाई का फ़ोन पहुंचते हम बहुत सुंदर रहेंगे और एक हफ्ता तक हम बहुत मेंटली परेशान रहे, बहुत परेशान रहे। और अजीब जी मैंने वाक़या मेरे सामने गुजरने लगा, जो वाक़या हम लोग एक साथ गुजारे थे। रशीद भाई इंतकाल बांग्लादेश में हुआ, सबको मालूम है। और इंतकाल की बात है कि जब बांग्लादेश में इंतकाल हुआ तो हम यहाँ कलकत्ता में बैठे हुए बहुत परेशान हो रहे थे कि उनके बड़ी कैसे आएगा। इसकी वजह ये है कि मेरे खानदान के 2 रिश्तेदार कलकत्ता में देख के थे बांग्लादेश में, उनके बड़ी जिंदगी बहुत हम लोगों को कबूल हुआ था, बहुत कबूल हुआ था। और उसमें रशीद भाई बहुत हेल्पफुल बने थे कि क्या करना है क्या करना है। तो हम सोच रहे थे दोस्तों कि यार जो शख्स हम लोगों को मदद किया था बड़ी घटने में, आज वो लाचार परदेश में पड़ा हुआ है, अल्लाह जानता है उसका कौन हिफाजत करेगा, कैसे में बड़ी आएगा। इसलिए वहाँ इनकलाबी दौर चल रहा है और जुमरात को हाफ डे बंद रहता है, जुमा दिन बंद रहता है, क्या होगा। लेकिन अल्लाह का मर्जी
बहुत खैर उम्मीद से सब काम अंजाम पाया। रशीद भाई के साथ हमारा ताल्लुक, नईम भाई का ताल्लुक हम लोग ऐसा था कि फैमिली से बड़ा जुड़ा हुआ था। शादी ब्याह दुख सुख सब में हम लोग अपना शेयर करते रहते थे कि क्या क्या मामला है क्या नहीं है, सभी होता रहता था। और मेडिकल हॉस्पिटल में उनका ताल्लुक था मौत के जरिए से, मौत के जरिए से बराबर तो सोशल वर्क में लग रहा है। हमारा भी ताल्लुक उसी में रहा, नईम भाई का भी। जब भी मेडिकल का कोई मामला आता था किसी के साथ भी, तो हम फौरन गैप कहते थे कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारा दोस्त है रशीद भाई है, तुम जाओ मॉर्ग में। बोले मॉर्ग वो तो इंस्पेक्टर है, सर्जेंट है, वो क्या करेंगे? नहीं, मॉर्ग में डॉक्टर साहब रहते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद है। मेरे ख्याल से बहुत से केस उनके जरिए से भी हुआ है। तो डॉक्टर साहब वहाँ पर मौजूद है, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बहुत खूबी से काम आया था। एक दफा का ऐसा वाक़या हुआ हमारे कॉलेज में, मैं चितरंजन कॉलेज से ताल्लुक रखता हूँ। डॉक्टर साहब आपका कॉलेज से कॉलेज है चितरंजन कॉलेज कॉमर्स का कॉलेज है। 32 साल मैंने वहाँ पढ़ा है। तो एक हादसा ऐसा हुआ 2008 में, एक दरबान था, नेपाली दरबान, बहादुर नाम था, राम बहादुर। वो तो पीना खाना वाला आदमी होता है। रात के वक्त 2 बजे रात को पिए में था, छत पे जा करके छलांग लगा दिया, उसकी मौत हो गई, मेरी खत्म हो गई। उसमें प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो मौजूद थे, और उसके बाद कॉलेज का बरसात, नेक्स्ट मैन हमीद है, बरसात थे, 100 साल का होना है। गुलाम साहब बोलते थे, गुलाम साहब ऐसा हो गया, चारों तरफ से पुलिस का आ गया, आदमी आ गया, सब कॉलेज को घेर दिया है, ऐसा था सुसाइड केस हो गया। ठीक हो जाए तो बड़ी को ले गया है, मौत में ले गया है, क्या होगा नहीं होगा बताइए। तो हम भी दौड़ते पहुँचे पड़ी, पहुँचने के बाद सर को बोला, सर अगर डेढ़ बजे आया हुआ है मौत में तो आप करवाइए, तो क्या काम हम लोग हो जाएगा। बोले लेकिन बात समझ लीजिए, उसका LIC है और बहुत सा मामला है। अगर वो नशा में रहेगा, अगर रिपोर्ट में आएगा नशा में, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसको इसको मिटाना है, रिपोर्ट में ये बात नहीं आना चाहिए कि नशा के हालत में वो उसकी मौत हुई है। हमने ठीक है सर को हम लेके गए रशीद भाई के पास। रशीद भाई बहुत प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल थे और मैं बहुत इज्जत दी। अब बोले आपको परेशान होने नहीं सर, हमारा दोस्त है, आप भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इंशाल्लाह जितना जल्द हो जाएगा हम काम कर देंगे। 10 बजे का वाक़या हुआ, कॉलेज स्ट्रीट में वहाँ भीड़ लगा हुआ, इधर उधर भीड़ लगा हुआ है। तो करीब 4 बजे के टाइम में बड़ी गिर गया, जबकि ये कानूनी बात थी, बड़ी गिर गया। शायद डॉक्टर साहब को याद होगा, उस जमाने में डॉक्टर साहब रहे होंगे। तो उस जमाने उसके बाद से हमारे प्रिंसिपल बराबर रशीद साहब को याद करते हैं। और रशीद भाई का जब भी मौका मिलता था हमारे कॉलेज में आते थे के बाद हम लोग थोड़ा गपशप करते रहते थे, इधर उधर बात करते। और प्रिंसिपल बहुत याद करता था, रशीद साहब का डालो, रशीद साहब का डालो, अपना कौन तो आसे लगे वो डालो। मेरा ये सब सिलसिला चल रहा था। 1971 से पहले की बात है कि हम नईम भाई और रशीद भाई हम लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो पाकिस्तान चले जाएंगे। तो तुम अपने कहीं कोशिश करो, हम अपने कहीं कोशिश करें कि वहाँ नौकरी कैसे मिलेगा। तो हमारे बहनों साहब तो बहुत हाई पोस्ट है, उन्होंने कहा कि अपने दोस्तों को सबको लेकर चला हो जाएगा। उसके बाद ही कॉन्ग्रेस हो गई, तमाम मनसूबा खत्म हो गया, मनसूबा खत्म हो गया। एक हादसा जो हुआ बाबरी मस्जिद का, उसके बाद तो बहुत अकल बतल हुआ इंडिया में, बहुत हालत ख़राब रहा। तो हमने सोचा कि रशीद हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। क्या काम करें? हम लोग कुरान पढ़े बैठ करके मालूमात को बढ़ाएं और दोस्तों को बुलाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं और लोगों में फैलाएं। लोगों में जो है कॉमनल हारमोनी को फैलाएं, कॉमनल हारमोनी का काम हम लोग करें। लोगों को जो है अच्छा नॉलेज देंगे। अगर हम कहेंगे कि हमारा हिंदू भाई जो है वो कॉमनल है, तो हमको ये कहने में दरेक नहीं होगा कि मुसलमान भाई उससे ज़्यादा कॉमनल है, इसलिए उसके अंदर तालीम नहीं है। तो हम लोग कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक अदारा बनाया, उसका नाम था पहले आवेग के जरिए से काम किया। कुछ दिनों के बाद आवेग को चेंज करने के बाद उसका नाम रखा गया था क्रिसेंट। वो क्रिसेंट अब तक अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है।
इसका मकसद मदरसों को मदद करना है, गरीबों में कपड़ा बांधना है और फूड किट्स बांटना है, रमज़ान के वक्त अफ्तार किट्स बांटना है, मुख्तलिफ किस्म का काम है। उसमें रशीद भाई वर्कशॉप में हिस्सा लेते थे। रशीद भाई को हम लोगों ने एक मीटिंग कर दिए, जो एक मदरसा है जंगालिया, जगह नाम है जंगालिया जामिया महमूदिया मदरसा नाम है उसका। हमने रशीद भाई को बोला तुम इंचार्ज बन लो और यहाँ पर हम लोग जहाँ तक होगा हम लोग कोशिश करेंगे उस मदरसा को मदद किया जाए। तो रशीद भाई ने आखिरी दम तक उस मदरसा काम करते रहे और बड़ा बेहतरीन तरीके से हम लोग गुफ्तगू होती रहती थी। शुरू तो बहुत से लोग हमारे मेम्बर बहुत मदद करते रहते थे, लेकिन ऐसे ऐसे वो ताउन घटता चले गया। तो हमसे बहुत सरगोशी बात करते थे, अकबर क्या किया बताओ अकबर कुछ रास्ता निकालो। अब तो ठीक आधा नाम नहीं करते, अच्छा रास्ता निकलेगा। रशीद भाई के सिलसिले में बहुत से सफात उजागर हो चुका है। आखिरी जो हमसे उनसे बात हुई थी वो हम करीब बांग्लादेश जाने का 3-4 दिन पहले वीज़ा वगैरह के बारे में भी उनको बता दिया था ऐसा होगा। तो हमको बस स्टॉपेज में हम आए तो बस नहीं आ रही थी, तो हम उनको बोला कि आप चले जाइए, तुम चले जाओ, हम बस आएगी हम चले आएंगे। नहीं तुमको हम चला के जाएंगे, तुमको चला के जाएंगे। अब देखो ना बांग्लादेश जा रहे हैं, मौत हायत का तो ठीक नहीं है, तो खाना से मुलाकात करना, सबसे मुलाकात वगैरह करना है, तो तुम कौन दिन आओ, देखो मुलाकात होता है कि नहीं, तो हम बस को तुमको चढ़ा दे तभी जाएंगे। हम उसको बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं तुम चले जाओ। तो ऐसा हम लोग का ये था सिलसिला कि नहीं भाई भी हमको बस में चढ़ा देते थे, हम लोग एक दूसरे को चढ़ा देते थे तभी रुख्सत होते थे। बहरहाल ये सब सिलसिला चलता रहा। तो अब वो दोस्त अब हम लोग बीच नहीं है, उसकी यादें हैं। सिर्फ अब हम लोगों को तुरंत दुआएं की ज़रूरत है। जब भी हम लोग नमाज़ पढ़ें और इबादत करें, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। और ये दो अबू हैं कि उनके 2 औलाद हैं और माशाल्लाह तालीम याफ्ता है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो और अच्छा ताल्लुकात पैदा हो और उनके वालिद साहब का नशकदा पर चले। और हम लोग जितने साथी हैं, जब भी जो ज़रूरत हो, ऐसी तो बात नहीं है कि उनको ज़रूरत है, लेकिन जब भी कोई बात हो बिला करें हम लोगों को कॉल करें, इंशाअल्लाह हम लोग हाजिर होंगे और उनके जो भी ज़रूरत है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ और अब मैं उनके बड़े फर्जंद इरफान को मैं दावत देता हूँ कि वो वालिद साहब के सिलसिले में कुछ आकर के कहें। अब वालिद साहब के सिलसिले में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ ही वाज नॉट a father to me but like a friend. अम्मी के इंतकाल से पहले मैं अब्बू से उतना बात नहीं करता था, टू बी ऑनेस्ट, बट अम्मी के इंतकाल के बाद he made a point to call me twice a day. He was truly a great man, to be honest. He was not at all dishonest. He was always willing to help, contribute to the society, to the family members, and of course to us. His dedication towards both my elder brother and me is something that we both would know. Starting from taking us to the school early in the morning in his Elmer Vespa, and then dropping us to 2 different schools, to the Assembly God Church Junior School and the Senior School. We had, the school will get over at 2 different timings, at 1:30 and 2:30. He would pick us up at 2 different timings. I remember how excited we used to be on a Saturday and a Sunday, because we would want to go to
the Victoria Memorial Monkey Ground to play cricket with our friends. Despite of him being a serviceman, he would ensure to drop us to the ground, and not just drop us, but he would stay there and ensure that we have a good time there. I really cherish the way they brought us, including my mother and my father. We had limited resources, but he knew how to utilize it to the fullest. I'm very grateful. Whatever I am today, it's their dedication. There's one incident which I remember, rather two I would like to. Once he got a random person at home. एक बार उन्होंने एक रात चलते कुछ शारदा स्टेशन में उनको कोई मिल गया, and he brought him home, and then हमारा एक क्वार्टर था तो उसमें सबसे बड़ा एक रूम था, and then I return from office, I see that a stranger is at home, and later on I got to know that he is a university student and he doesn't have a place to stay. My father ensured that he stayed with us without anything in demand that आपको rent pay करना है, and he would sometimes eat with us. So this is one of the incidents of his great service to the society. There is another incident. Khurshid Umma had gone to Russia, and one of his fellow students, he joined medical college. उन्होंने उनको भी अपने घर पे रखा, and we used to have food together. So I don't think अभी के टाइम पे कोई कर पाएगा, at least मैं तो नहीं कर पाऊँगा, to be honest. So these are the two incidents which I remember that he was a very well-read person. उनको पढ़ना बहुत पसंद था, and he ensured that we also read. So जब summer vacations होते थे या winter vacations होते थे, so वो हमें newspapers read कराते थे, and then also he used to ensure कि हम meanings याद करें, handwriting लिखे. So sometimes I used to get irritated कि वो खेलने नहीं देते, हमें ये करने देते, but whatever I am today, it's all the effort from him. एक और incident है, I remember when Sunday के रोज office बंद होता था. So if a dead body used to come on a Friday or a Saturday, he ensured कि वो magistrate को बुलाकर, Gogara uncle है यहाँ पे, he would be able to reconnect with me what I'm trying to say. So he would ensure कि magistrate आए and then get a sign off from the doctor, the forensic expert, and then he would release the body. तो कई बार अम्मी बोलती थी कि यार आप संडे के रोज क्यों ऐसा कर रहे हैं? He used to say कि किसी का इंतकाल हो गया किसी के घर पे, उनके घर पे खाना नहीं बन रहा है, so अगर मैं 2 घंटे में ये काम कर देता हूँ तो there is no harm, and that's what I feel कि उनको जो अभी इंतकाल हुआ बांग्लादेश में, when I remember when I called the Indian embassy from मैं टोक्यो में था उस टाइम पे, so when I called the Indian embassy, those guys, the first counselor told me कि जनाजा 10 दिन से पहले इंडिया नहीं आ सकता, and trust me, it was a miracle. When I spoke, I told, can you please connect me to the ambassador? He connected me. I was on a train, I was on my way to the airport. I just spoke for 5 minutes with him. I don't know what happened, I mean, it was a miracle. That guy told me, please get all the papers, हम 2 घंटे में we will release it. And he honored it. So if he would have not served the humanity, I am sure this miracle would not have happened. He was a great, to me he was a great friend. अभी मैं बोलूँ तो probably I can talk hours or other days about his greatness. He never wished bad to anyone. He used to tell me that जो करता है करने दो, you be good to them.
and then hopefully things will pan out well. And this is a teaching that I would always remember. I take it to my grave, that to be honest, to be respectful, to be helpful, to be able to talk the way. Maybe I have learned a few things from him, and I would love to live a life like him. He was never afraid. In the last few years, I would say, we got implicated into a false matrimonial issue. But he never said that, okay, chalo, settle with it. He always said, let's fight, because we have not done anything wrong. So inshallah, I'll try to continue to fight, and I hope that one day I can hold my head high. I know judiciary is a bit tricky thing, but I'm very much sure that things will pan out well, and yeah, we can do our best. With this, I end the Jahunga. Thank you so much. Please make prayer for him, and yeah, please make prayer for our family as well. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. अमीरुद्दीन भाई से दरखास्त करेंगे, दुआ कर दीजिए। अच्छा, जो मेरे चाचू हैं उनकी तरफ से, तो बेसिकली मैं वो प्ले करता हूँ, एंड देन प्रॉब्लम कैन Assalamu alaikum and very good evening to all of you. I'm Dr. Khurshid Ahmed from Bahrain. I'm the youngest brother of Ali Abdul Rashid Sahab, who is no more with us and passed away on 21st of November 2024. I feel sorry and disappointed for not being able to attend this special event. My words sorrow that I feel for the passing of our beloved Maisa. There are no words for a loss so great, and nothing can ease this loss. He was a godfather for not only for me, but for my other family members as well. He was the father figure in my life. The platform on which me and my family are standing today, truly it's all because of him. Thank you, Maisa, for always being there with your love, guidance and thorough care, and making me a doctor. Today I am so proud to be your youngest brother, an interventional cardiologist. We will never forget his kindness, generosity, and philanthropic mindset. He always happily extended his helping hands to everyone in need. He had a genuine passion for helping others. He was a remarkable and iconic personality in our family and society. He was a great role model for all of us. His kindness, warmth, wisdom, and memory will always be cherished. This loss is immeasurable and irreparable. Whenever I will serve and treat a patient, Maisa, you will always be present there. Actually, it will not be mine, but your healing.
soul rest in peace and heaven. O Allah, have mercy on Baisa and give him a high place in Jannatul Firdaus. Raise his rank among those who are guided. Make him drink Hawd al-Kawthar on the day of judgment from Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's blessed hands. Forgive him and cast your pardon upon him. Let him rest in peace and raise him up secured on the day of resurrection. O Allah, let his accounts be taken by an easy reckoning. You are indeed the of returning, the most merciful. Ameen. Summa Ameen. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য এবং খাস করে যে উদ্দেশ্য করে আজকের এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য করে একটু দোয়া করবো মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে যেন উচ্চ আলা মাকাম দান করেন জান্নাতুল। এই দোয়া আমরা মন প্রাণ খুলে সবাই করব। এখন দোয়া হবে, একবার ইস্তিগফার পড়ুন, একবার সূরা ফাতিহা পড়ুন, কুল সূরা 3 বার পড়ুন বিসমিল্লাহর সাথে। اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين আমরা গুনাহগার বেশার নাদান পাপী তোমার দরবারে হাত তুলেছি মাওলা তুমি আমাদের জীবনের तमाम গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিও মাওলা রব্বুল আলামিন সূরা ইখলাস পড়লাম, সূরা ফাতিহা পড়লাম, দরুদ শরীফ পড়লাম মাওলা, যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তুমি ক্ষমা করে দিয়ে যতটুকু সওয়াব দান করেছেন আকে ইমদার তাজদার মদিনা বিশ্বনবী জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকে পৌঁছে দিও। খাস করে সাহাবা کرام তাবে তাবেঈন আইমায়ে মুস্তাহিদিন খলাফে রাশিদিন হুজুর দরুদ পাক সওয়াব পাকে পৌঁছে দিও। রব্বুল আলামিন আমরা বড় গুনাহগার তোমার দরবারে হাত তুলেছি মাওলা, মজলিসের মধ্যে যার হাতকে পছন্দ করেন তার হাতের ওসিলা করে তুমি আমাদের জীবনের तमाम গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিও মাওলা। রব্বুল আলামিন আমরা অনেক ভাই অসুস্থ আছে মাওলা, তুমি শিফা দাও মাওলা। অনেক ভাই ঋণগ্রস্তর মধ্যে আছে, ঋণকে পরিশোধ করার তৌফিক দাও মাওলা। অনেক ভাই কন্যাদায় ভুগছে, সুপাত্র মিলিয়ে দাও মাওলা। অনেক ভাই মাওলা মুকদ্দমায় ভুগছে, সুফয়সালার ব্যবস্থা করে দাও মাওলা। রব্বুল আলামিন তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল করে নাও মাওলা। তোমার হাবিব বলেছে বান্দা যখন দোয়া চায় আরশে আজিম কেঁপে যায় মাওলা। এ মাওলা তাই তোমার দরবারে হাত তুলেছি, ভিক করে নেয় মাওলা। তোমার শাহেনশাহ হাত তুলেছি মাওলা, তুমি আমাদের জীবনের तमाम গুনাহ খাতাকে মাফ করে দাও মাওলা। খাস করে দয়া করে আল্লাহ আমার সরপরস্ত যিনি ছিলেন আলহাজ মরহুম হাজী রশিদ সাহেব দুনিয়া থেকে চলে গেছেন মাওলা। তার কথার আওয়াজ, তার মিষ্টি ভাষা, তার যে সুব্যবস্থা করে বাচ্চাদের সেই ব্যবস্থাপনা
কোথায় থেকে পাবো জানি না মওলা। এ মওলা যেমন ভাবে বাচ্চাদের দেখে গেছে শান্তিতে রাখার তৌফিক দিন মওলা, যেমন ভাবে বাচ্চাদেরকে দেখেছে যে বাচ্চারা ভালো থাকুক আল্লাহ, তুমি আমার হাজী রশিদ সাহেবকে তুমি ভালোই রেখে দিও মওলা, জান্নাতুল আলা মুকাম দান করো মওলা, জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করো মওলা। এ মওলা যদি কোনো বার ফেল হয়ে থাকে মওলা, তোমার কাছে হাত তুলে মাবুদ আমরা দোয়া চাচ্ছি মওলা, ক্ষমা করে দিও, জীবনের तमाम গুনাহ খাতাকে ক্ষমা করে দিও মওলা, ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতুল আলা মুকাম দান করো মওলা। জান্নাত হলো না কবর হলো পোকামাকড়ের ঘর, তুমি আলো দিয়ে ভরে দিও মওলা। এ মওলা নিশ্চয়ই তিনি আজকে আমাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন মওলা। এ মওলা বাচ্চাদের ইসারে সাফ হচ্ছে, দোয়া পৌঁছে যাবে মওলা। যেভাবে বাচ্চাদের দেখেছে মাদ্রাসা ছোট ছোট মাসুমদেরকে কম্বল দিয়েছে শীতের সময় মওলা, কখনো খাওয়া হচ্ছিল না, চাল পৌঁছে দিয়েছে, ডাল পৌঁছে দিয়েছে মওলা। তুমি আমার হাজী রশিদ সাহেবকে কবুল করে নিও মওলা। এ মওলা তার যদি সমস্ত আমল বেকার থাকে মওলা, তুমি এতিম অসহায় বাচ্চাদের দেখভাল করার কারণে তুমি তাকে ক্ষমা করে দিও মওলা। এ মওলা তার চলাফেরা ওঠাফেরা অনেক ভালো ছিল মওলা, আমরা জানি মওলা। এ মওলা তুমি তাকে জান্নাতুল আলা মুকাম দান করো মওলা। তার ওয়াইফ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন মওলা। আমার ভাইজান ভাই, আমার ভাইজানেরা অনেক মার জন্য দোয়ার জন্য বলেছে মওলা। হাজী সাহেব যখন বেঁচে থাকতেন নিজের ওয়াইফের জন্য বলতেন বারবার, বাবা একটু দোয়া করো, আমিরুল একটু দোয়া করো বেটা, আমাকে বেটা বেটা করে ডাকতো মওলা। আর কে বেটা বলবে? আমার আব্বাও দুনিয়ায় নেই মওলা, তাকে তুমি জান্নাতুল আলা মুকাম দান করো মওলা। আমরা গুটি কত মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে হাত তুলেছি মওলা, আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা যেখানে শুয়ে আছে মওলা, যদি কোনো পেরেশানি হালতে থাকে মওলা, তুমি কবরকে নূর দিয়ে ভরে দিও মওলা, কবরকে নূর আলা নূর বানিয়ে দিও মওলা, মওলা কবরকে নূর আলা নূর বানিয়ে দিও মওলা। হে মওলা, হে মওলা আমার মাদ্রাসার দিকে যারা খেয়াল রাখে মওলা তাদেরকে কবুল করে নিও মওলা। আমিদ ভাই, মুস্তাফিজ ভাই, আমার আলী আকবর ভাই মওলা, আমার করে আমার নাইম ভাই, গোলাম আকবর সাহেব মওলা, এনারা মাদ্রাসার দিকে খুব খেয়াল করে মওলা। প্রত্যেকদিন মাদ্রাসার খরচা মওলা প্রায় ৩,৬৯০ টাকা মতো খরচা হয় প্রত্যেকদিন মাদ্রাসায়, এক টাইম দু টাইম খাওয়া মওলা। মওলা এগুলো সব তোমার ফয়সালা, তোমার ইশারায় হয় মওলা। এ মওলা তুমি কবুল করো প্রতিষ্ঠানকে, আমাদেরকেও কবুল করো দিনের জন্য মওলা। এ মওলা, এ মওলা খাস করে মওলা আমার হাজী সাহেব ছেলেদেরকে তুমি দিনের লাইনে লাগিয়ে দাও মওলা, সহিভাবে আব্বা মায়ের জন্য মওলা মাঝে মাঝে সওয়াব রেসানি করার তৌফিক দিও, কোরআন খতম করার তৌফিক দিও মওলা। আমরা যারা চলে গেছে দুনিয়া থেকে, আমাদের থেকে আত্মীয় স্বজন মওলা, তাদের জন্যও সওয়াব রেসানি করার তৌফিক দিও মওলা। মওলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করে নিও মওলা। গুনাহ করে করে পাহাড় পাহাড় পরিমাণ গুনাহ করে ফেলেছি মওলা। এ মওলা তুমি আজকে আমার ডাকের সাড়া তুমি নিয়ে নাও মওলা। এ মওলা তুমি কবুল করে নাও মওলা, তুমি কবুল করে নাও মওলা, তুমি কবুল করে নাও। অবশেষে আমাদের হাজী রশিদ সাহেবকে তুমি কবুল করে নাও মওলা। এই মজলিসে যত ভাই হাত তুলেছে তাদেরকে কবুল করে নাও মওলা। লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু যুনুবা জামিআ, ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন والحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله محمد رسول الله. जलसा का इख्तिताम है और आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया, आप लोगों ने जलसा को कामयाब बनाने में अपनी तशरीफ आवरी की है, इसके लिए अदारा बहुत शुक्रगुजार।